بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمر شیخ حاضر خدمت ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ دوستو امید کرتا ہوں خیریت ہو گیا آپ لوگوں کو اللہ ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ درد و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو دیکھیں گے جس کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، سورہ الزمر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے کوئی بہکا نہیں سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگوں کو اچھی بات کی ہدایت کیا کرو اور برے کاموں سے روکو، ورنہ ان قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا اور تم اللہ سے دعا کرو گے اور اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو ہدایت کا امپورٹنس پتہ چلے گا اور اللہ کی رحمت کا بھی امپورٹنس پتہ چلے گا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہ میں نے کلمہ قبول کیا اور اس دین میں آئی۔ اب بتانا چاہوں گی وہ حصہ اس کے بعد کیا ہوا۔ میری ٹکٹس اسلام قبول جو میں نے کیا ہے 9 تاریخ کو، آلریڈی میں نے بک کر کے رکھی ہوئی تھی گھر جانے کے لیے 9 تاریخ سے ایک ہفتے کے بعد۔ اسلام قبول تو میں گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے وہ بعد سفر جو تھا وہ تھا 2 راتیں اور 3 دن کا، تھوڑا لمبا سفر تھا کیونکہ میں ٹرین سے گھر جا رہی تھی۔ اتنی امیر نہیں تھی کہ میں فلائٹ پلین کی ٹکٹس وغیرہ کر سکوں، اتنے اچھے رچ شاہی خاندان سے نہیں ہوں میں۔ تو ماشاءاللہ میں گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک ڈائری میرے پاس تھی جس میں دعا لکھا کرتی تھی، کیونکہ میں نے ایک استاد کے پاس جانا شروع کر دیا تھا، ان سے دعا، نماز، قرآن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ مجھے دعا لکھاتی تھی ہر روز ایک، اور ایک چھوٹا سورہ ایک، تو میں وہ یاد کیا کرتی تھی، رٹا کرتی تھی۔ تو وہ ڈائری میں نے کپڑوں میں چھپا کے رکھی تھی۔ ماشاءاللہ گھر پہ پہنچی، بہت بےحد خوش تھے سب سارے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے تھوڑے کپڑے سلوانے ہیں، لیکن تھوڑے الگ طریقے کے، جن کی باہیں لمبی ہوں، جو گردن سے بند ہوں، کالر ہو انہیں بالکل بند ہو، تھوڑے اتنے ڈھیلے کہ میرا شریر نہ دکھے کہ میرا شریر کس قسم کا ہے، اس میں موٹی ہوں کہ پتلی ہوں پتہ نہ چلے۔ یہی ہوتا ہے جب اسلام کو کوئی بندہ دل سے فالو کرنا چاہتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ اسلام کی باتوں پر عمل کرنے لگتا ہے۔ بس اسے جو ہے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اور اللہ سے محبت بھی ہونا چاہیے اور اسلام کو فالو کرنے کی چاہت بھی ہونا چاہیے۔ تو مما بول رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں مما پلیز مجھے سلوانے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ مسلمان لوگ رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں، تو جب ان کے بزرگ گھر سے باہر آتے ہیں وہ میرے یا مجھ جیسی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے کپڑے دیکھ کے بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں، شرمسار، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب فیل کرتے ہیں، انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں باہر۔ تو اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں تھوڑا سا بدلاؤ۔ تو ماما نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم گئے، شاپنگ وغیرہ کی، تو ہم نے کپڑے وغیرہ خریدے، ماشاءاللہ ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آنگن میں بیٹھتی ہوں، گھر کے آنگن میں کرسی پر ٹریک سوٹ لگایا ہے میں نے، کیونکہ گھر پہ کچھ ویسے کپڑے تھے ہی نہیں، تو ماشاءاللہ میں نے ٹریک سوٹ لگایا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھا ہے۔ ہاں، کیونکہ جو ایمان اور مسلمان اور جو نیکی ہے یہ سب ایک ہی چیز پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ویسے دکھ رہے تھے لیکن پھر بھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دکھاوے لے کر رہے ہوں اور آپ کی نیت خراب ہو، لیکن میری نیت صاف تھی خدا کو لے کر۔ تو میں نماز کر پڑھنے کے لیے بیٹھی آنگن میں کرسی ڈال کر، تو میری ماں جو تھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ جھاڑو لگاتے لگاتے جب وہ میرے قریب پہنچی، میری ماں نے کہا کہ ذرا ہٹ جائیے۔ میں چپ، بالکل چپ، کیونکہ میں فرض نماز میں، عصر کا وقت تھا، میں فرض نماز میں تھی، نیت کر چکی تھی۔ الحمدللہ کہ وہ میری آخری رکعت تھی، تو ماں کافی دیر تک کوشش کرتی رہی، میں کچھ بول ہی نہیں رہی، انہیں بہت غصہ آیا۔ تو جب میں نے سلام، تھوڑا سا گردن ہلکا سا ادھر نظروں کو پھیر کر، ہلکا سا نظروں کو ادھر پھیر کر سلام پھیری، تو میں نے بولا کیا ماں؟ میں سوچ رہی تھی، مجھے بہت امپورٹنٹ 300 نمبر کا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں گہری سوچ میں تھی، کچھ آئیڈیا لگا رہی تھی۔ تو ماں نے بولا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟
इतना भी क्या आप सोच में डूबी हैं। चलिए जैसे तैसे होके वो बात खत्म हो गई। अगले ही दिन क्या हुआ कि दोपहर में मामा ने मुझे वजू बनाते हुए देखा। जो हम नल लगाते हैं जमीन, जिसे आप ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, वो नल हमें हर घर में होता है वहां पे, तो मेरे घर में भी था। तो माँ मेरी किचन से खिड़की से मुझे देख रही है कि ये कर क्या रही है, इतनी सर्दी है, जनवरी का महीना है, और ये क्यों गर्दन धो रही है, अपनी टांगों को ठंडे पानी से क्यों धो रही है। तो बता दूं कि मेरे घर में गीजर वगैरह नहीं था। चूल्हे पे जब नहाना हो किसी को तो चूल्हे पे पानी गर्म करके दिया करते थे, तो गर्म पानी की गुंजाइश थी नहीं, तो ठंडे पानी से वजू बनाया। किसी मुसलमान का सर्दी के वक्त ठंडे पानी से वजू करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। वरना आपने देखा होगा बहुत सी जगह जो होता है वो लोग जो है वजू करने से पहले जो है गर्म पानी कर लेते हैं और उससे वजू करते हैं। तो अब मम्मा पूछ रही है मुझे कि आपको हो क्या गया है, जब से आप आई हैं अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। मैंने बोला नहीं मम्मा, मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, गले में कुछ चुभ रहा था और थोड़ी गर्मी सी महसूस हो रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा हाथ मुंह धोया, सोचा थोड़ा साफ सा हो जाएगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो चलिए माँ ने वो भी छोड़ दी बात। माँ मेरी बहुत भोली है माशाल्लाह, जो कहिए वो मान जा। चाहे लड़का हो या लड़की हो, पर घर में जो सपोर्ट होता है वो हमेशा माँ का होता है। बच्चा या बच्ची जो भी बातें माँ को बताती है माँ मान लेती है। अब क्या हुआ कि मैं सुबह के 4 बजे उठा करती थी, वजू बनाती थी और हम रजाई लेते थे, चूंकि तो रजाई में पूरी ओढ़ती थी, जिस तरह मैंने हिजाब निकाब लगाया है इस तरह ऊपर से वो पूरा गिराती थी और बैठी रहती थी, हिलती डुलती कुछ नहीं थी, सिर्फ इशारों में नमाज दिल में पढ़ रही हूँ, चुपचाप, मुंह से कुछ निकाल भी नहीं रही हूँ कोई अल्फाज। तो मम्मा वो भी पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप क्या सुबह 4 बजे बैठी होती हैं। अब मैं वहां पे भी झूठ कि मम्मा मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की है, तो मैं योग जिसे हम कहते हैं करना, योगा करना शुरू किया है, तो ये बड़ा सेहतमंद होता है, शरीर के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, दिमाग में सुकून देता है, तो इसीलिए मैंने मेडिटेशन शुरू की है, तो आप फिक्र ना करें। चलिए कोई बात नहीं, मम्मा ने वो बात भी मान ली। अब एक रात क्या हुआ कि मैं और मम्मा और मेरी बहन सो रहे थे, तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि आप जानती हैं मेरे पास एक दुआ है जो अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो आप और पापा आपके, क्योंकि जो आप लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे जाते हो, लंबे लंबे सफर तय करते हैं, आप लोग हमेशा सेफ पहुंचते हैं, सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित ही घर आते हैं। मैंने बोला मम्मा ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी दुआ है। बोलती है मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप अंडा खाती हैं। मैंने बोला मम्मा अंडा नॉनवेज में मुंह से खाती हूँ, कानों से नहीं खाती हूँ, तो आप बोल सकती है मुझे, मैं कानों से सुनूंगी। तो मम्मा ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यकीन मानिए पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मैं उठ के बैठ गई। मैंने मम्मा से बोला आप जानती हैं आप क्या बोल रही हैं। बोलती हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें क्या हुआ। मैंने बोला मम्मा ये मुझे वहाँ जहाँ मैं पीजी कर रही हूँ वहाँ जा, इस्लाम की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही इस्लाम की बुनियाद है। कर पता चला है कि ये क्या है। आप जानती हैं सारा इस्लाम इसी पे खड़ा है। आप जानती हैं कि अगर इस अल्फाज को कोई समझ ले और इसे कबूल कर ले तो वो मुसलमान बन जाता है, वरना मुसलमान बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलमा कबूल करना है और सच्चे दिल से कबूल करना है। तो उन्होंने थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर बोला मुझे ये सब नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब भी आप या आपके पापा लंबे सफर पे जाते हैं या कोई भी लंबे सफर पे जाता है घर से, तो मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ तो सब लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने माँ को वो छोटे से पेपर पे लिख के दिया, क्योंकि वो थोड़ा प्रोनाउंस अजीब तरीके से कर रही थी, तो मैंने उन्हें सही तरीके से लिख के दिया। अब मैंने जानने की कोशिश की, ये अपनी फैमिली को, जो इनकी अम्मी है, फैमिली को प्रोटेक्शन करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमेशा पढ़ती है। यानी जो इनकी अम्मी है वो कभी भी उनके फैमिली का कोई मेंबर जाता है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती है, ताकि उनकी फैमिली जो हिफाजत में रहे। कि मम्मा आपने सीखा कहाँ से है। तो माँ ने बताया जब हमारी शादी हुई थी तो आपकी दादी जो है, क्योंकि मैं शादी के 1 साल बाद पैदा हुई थी, मम्मा पापा की शादी के बाद पैदा हुई थी 1 साल बाद, तो अगर मैं 24 की थी तो उन्हें 25 साल पहले मेरी माँ जो दादी थी उन्होंने बताया था कि ये लाइन पढ़ा करो हर। सुभान अल्लाह, ये भी इनकी दादी ने इनको लिख कर दिया था, मतलब बताया था इनको, और ये 25 साल से उस चीज को फॉलो कर रही थी इनकी अम्मी जो है। वक्त आपकी सारी दुआ कबूल होगी, आपके घर में सब सेफ रहेंगे। तो तब से 25 सालों से वो ये कलमा पढ़ रही थी माशाअल्लाह, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो मुसलमान है या इसको मानने से कबूल। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना था कि मेरे घर वाले सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए वो कोई भी दुआ, हर मुझे लगता है हर माँ, हर बीवी, हर शौहर, फैमिली मेंबर्स जितने भी होते हैं कि आपस में इतनी मोहब्बत होती है कि हर कोई ऐसा कर लेगा। तो चलिए अब मेरा वापस आने का वक्त था, तो मेरे पापा पगड़ी बांधते थे,
तो पगड़ी बांधने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है क्योंकि उसमें प्लेट्स बनानी पड़ती हैं। तो एक कोने पे मैं थी पगड़ी के और एक कोने पे पापा थे, तो हम प्लेट्स बना रहे थे। तो पापा ने बोला बेटा एक बात बोलूं आपसे। मैंने कहा जी पापा बताइए। पापा ने बोला आपको पता है जहाँ आप रहती हैं वहाँ बड़े मुसलमान हैं? मैंने कहा जी पापा। बोला आपको पता है उनकी दुआएं बड़ी ताकतवर होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, अगर आप उनकी कुछ दुआएं लाकर मुझे दे सकती हैं तो बहुत मदद होगी। मैंने कहा पापा तो मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते हैं? उन्हें बोला आप चुप रहें, मैंने आपसे ये नहीं कहा, सजेशन नहीं मांगी, आप मुझे सिर्फ दुआएं ला के दें। उनकी दुआएं में बहुत असर होता है, अगर आप कुछ मांगते हैं और वो दुआएं पढ़ के मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। सुभान अल्लाह। कि देखो एक नॉन मुस्लिम का भी ऐसा अकीदा है कि मुसलमानों की दुआएं वो बड़ी पावरफुल होती है, बड़ी तासीर होती है उसमें, और हम मुसलमान छोटी छोटी बात पर अल्लाह से नाज़ेबा कलमात कह जाते हैं, छोटी छोटी मुसीबत जाता है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब दिल ही दिल में सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस दीन में आ गई, अल्लाह ने मुझे सुन लिया, अल्लाह ने मुझे समझा दिया कि वाकई ये दीन कितना खूबसूरत है, कि अल्लाह के कितने करीब है। गैर मुसलमान इस दीन की दुआएं चाहता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ना चाहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों को पढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि उनकी बातें जो है वो कबूल होंगी, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो कबूल होंगी क्योंकि इन दुआओं की पढ़ने की वजह से। तो उसके बाद मैं वापस आ गई। सुभान अल्लाह। वो इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे घर वालों से वो पहली और आखिरी मुलाकात थी। तो 8 साल हुए मुझे इस्लाम कबूल किए हुए, 8 साल हो गए हैं अपने घर वालों को देखे हुए। जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो का अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे परिवार वालों को कैसे पता चला कि मैंने इस्लाम कबूल किया है और क्या रिएक्शन था उनका, क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ी, क्या क्या सहना पड़ा। सहा उन्होंने भी, सहा मैंने भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, जिंदा है, खुश है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने, कितना ही खूबसूरत वीडियो था ये, जिसको देखकर ईमान ताज़ा हो गया। दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये बहन जो है इस्लाम कबूल जब ये बहन ने किया तो अपने घर वालों से छुपाए रखा, और इनके साथ क्या क्या ट्रेजेडी हुई नमाज पढ़ते वक्त जो है, और जो है हर चीज़ में इनके साथ ट्रेजेडी हुई है। जो जो अरकान अदा कर गई है इस्लाम का, जैसे कपड़े पहनने के लिए इन्हें बहाने देना पड़ा, नमाज पढ़ने के लिए इन्हें योगा का बहाना देना पड़ा। दोस्तों हम और आप कितने बड़े खुश नसीब है कि हमें इस्लाम में अल्लाह ने पैदा किया। तो हमें भी जो है इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है मुझे आपको और तमाम मुसलमानों को अल्लाह नमाजी बना दे और ईमान पर ख़ात्मा हो दोस्तों, और अल्लाह हमें हमेशा हिदायत पर रखे। दोस्तों आज इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हो तो हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट करना हमारी हौसला अफजाई करता है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।